Welcome everybody to the session, third episode of Ask Me Anything. And like I said, my name is Shekhar. I'm the CEO and Managing Director at Biotecnika. And with your permission, I'll be recording this session as well so that we can later on upload to YouTube for the benefit of everybody. Okay. This time, the questions will allow you to talk. So if you have a mic, you can actually ask your question like how we're talking, right? One to one, and I'll answer. Okay. So the benefit will be, you don't need to type that long sentences. You can directly ask me question, I'll answer. Okay. I think that will be fun, isn't it? Okay. So, okay, I already have started getting questions. Oh, big questions, right? Okay. So अभी पहला क्वेश्चन कौन पूछेगा? प्लीज रेज योर हैंड. मैं आपको अलाउ टू टॉक का दूंगा. ओके, रिमझिम कवाद, आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो? यू हैव अ माइक, so I'm allowing you to talk. Rimjim, please ask your question. Hello, sir. Hi. Hello. I am interested to do a postgraduate diploma in bioinformatics. I am Okay. from Mumbai. No, I am from Okay. Mumbai, and the Okay. institute I've come across, it's a training institute, and it's not some university. Okay. It's a biotech company. Right. Right. Can I pursue the course from that training institute, or is it like that I should go from some university and do the postgraduate diploma? Okay. So very important question you're asking, Rimjim. Okay. The first thing here is you have to look at the reputation of that particular organization. Okay. So look for some testimonials, reviews, good reviews as well as bad reviews. Okay. Read both of them and then judge for yourself. If you want to go for a university-based postgraduate diploma, also that will have a higher value. According to me, a university-based postgraduate diploma will have a higher value. But if you're not getting it, as long as the company is good and they are able to train you in the right tools for bioinformatics, I don't think there is a problem. Okay, so the value sometimes when we write on the CV that you did from this company, they don't take it negative. Okay, but the main thing is you should learn there, and universities may kai bar they don't teach you properly, right? So if it's a company and you are paying to do that internship or postgraduate diploma, then you can actually question them if they don't provide you the service. But when you enroll in a university, even if they don't teach you properly, you can't really go and question them. So, a private limited company will be much more reliable, according to me. However, sometimes in CV, they will, give more weightage to university, but depends on the university. Like if you have Thapar University, yeah, you'll have Amity, JP, yeah, they will have. But a small university, it won't have. So it depends on what you are choosing, which university or which, company. I hope that answers your question, or did I confuse you more? No, thank you so much. Okay, great. Thank you so much, Rimjim. So next question, who wants to ask? Please raise your hand. Okay, Nirupama Parida. I'll come to Megha. Okay, Nirupam, it's your time to talk. Yeah, please go ahead. Ask a question. Good evening, sir. Okay, good evening. Nirupama, sorry. Nirupama, good evening. How are you? Sir, I'm fine. Sir, what about you? I'm doing great. Puche, what do you want to ask? Actually, I wanted to ask that if I am doing my postgraduate from Central University, that would be better, or if I would do my postgraduate from like some private university like Amity University or like that. Can you repeat your question? There was an audio break in the middle. Sir, I asked that if I do my postgraduate from a normal central university, it would be better, or it would be better if I do from any private university like Amity University or like something like that, Chandigarh University, like. Okay, good, very good question. Very good question. So मैं आपको एक बता दूँ बात. So if you ask me honestly, I will give the private universities a higher ranking than central universities. Okay, and there is a reason. I'll tell you the reason. The reason is the private universities are hiring postdocs who have returned from US, UK, China, Europe as professors. The central universities, they have professors who many times have not, what do you call? I'm not getting the word. They will be like, हाँ उनका तो सरकारी नौकरी है, nobody can actually question them. तो वो एक feeling आ जाती है, that attitude changes. When it's a private university, the professor is a private employee. So, they're very responsible and they're very interested in the student's career. So ये मैंने personally देखा है. For example, I visited VIT, Vellore, okay? So the HOD, the
assistant professor, they themselves were very much interested. Okay. The only downside is they'll charge you more money. Okay. So if you have the money, go for a private university. See, after writing CET or any such exams, when you get into a central university, not all of them are very good. Like the top-notch ones are, of course, they rank like top 5 ones are very good, right? But for example, without defaming any university, I'll tell you a central university. It's one of the top-notch university. Wahan par, there nobody secures. The topper also secures 60% marks. Okay, because their examination system is very stringent. But the affiliated college, which is there under that university, they don't teach properly, right? And the students keep getting 50-52% marks, और फिर उनको दूसरी जगह पे admission नहीं मिलती है. I'm talking about a central university. Okay, तो ये problem हो जाती है. When it is a MIT university or SRM or VIT, fees तो बहुत high है. That is for sure. But उनकी professors की quality बहुत अच्छी है. That's my personal experience. Thank you, sir. ठीक है. Thank you so much for asking that question, Nirupama. चलिए, next question है मेघा का. So Megha, you can ask your question. Yeah. Go ahead. Sir, good evening, sir. Good evening. Namaskar. बोलिए. Sir, I'm interested in doing a PhD from the US. So I was wondering what are the basic foundation works that I have to do in order to start my admission process for like the fall of 2024 or something. Okay. Basically, I always love to, answer these kind of questions because these are very rare. These informations are very rare. Like it's not available everywhere, right? So Yes. I'll try to answer this question in detail. Okay. So first thing, have you written GRE or TOEFL or some exam? IELTS? No, sir. I'm actually planning on writing, starting GRE and then TOEFL. Yeah. Okay. So, Megha, first thing, which university you want to target? Tell me. Sir, I did look at several universities. San Jose State University is one of the universities that I checked, and then UCLA and everything. I'm aspiring for that. Yeah. Okay. So first thing, whichever university you want to target, go through their impact factor, what kind of work is going on, and who are the people who are doing owning the labs there, like running the labs. Connect with them on LinkedIn. So that's the first thing, so that they know your name. Okay, somehow they know your name, and you have to be active on LinkedIn. In the meanwhile, have you done some temporary projects here in India, like SRF, JRF, something like that? Some research experience? Okay. So now you look at the university. Okay. Suppose the university, there is, you want to do your PhD in stem cells, right? Now you look at India. Okay. What are the stem cells based labs in where I can get in easily? Okay. Look at Biotecnika. Probably we can help you there. And then you apply there, do some temporary 6 months, 1 year project. In the meanwhile, keep preparing for GRE. Okay. And then in the meanwhile, once your project is over, get a nice, testimonial on your LinkedIn, as well as, in written feedback from your guide here in India, and then forward that to your US, wherever you want to apply. This way, what happens? See, this is something which nobody else is doing. Okay. And of course, you should have a high GRE score that will help you for sure. That is something. Now, once you have applied, when you're applying, they will ask you for statement of purpose, like why you want to, and try to gain some teaching experience, because that also comes handy. Okay. I remember a girl, she was working with us in 2011. Okay, today she's a postdoctorate. So she joined Biotecnika, gained some 6 months of teaching experience, and when she applied for a PhD in US, okay, this 6 months of experience was counted because everybody in US knows Biotecnika. In fact, many of the labs there, the PhDs and postdoctors there know Biotecnika. They are early subscribers. So, that helps. Okay. So if possible, gain some teaching experience, because during PhD also, there will be some teaching assignments which you'll have to do. Okay. Yes. You'll have to gain some relevant research experience in India, which will help you get there. If you straight away just do GRE and apply, they may not take you because you don't have relevant experience. See, okay, I'll put you in front of the the head of the lab in a very blunt manner. How easily you can simplify the work of that particular person. Okay. That's what he thinks. When he's recruiting a PhD student, he thinks like that. When he's recruiting a postdoc student, he's thinking like that. See, I have got the grant from NIH.
So now I have to, get the work done, get the research work done. So if I'm hiring someone who has no experience, then I only have to do babysitting, and this person will, take a lot of time. So I want someone as a head of the lab who comes pre-decided, like pre-trained. And this is where this will help you. So I think I answered your question in detail, Megha. If you have Yes, any sir. further questions, you can ask me right now. Sir, I would also like to know about the the importance of Scopus Index publications during this PhD process. Definitely, I Like, missed out on that point. Yes. Yeah. Yes. So Scopus Index journal. So when you have high impact journals, publications on a relevant paper on which you want to do further PhD, that will definitely help you. In fact, that helps you stand out of the crowd. Okay, even if you don't have the JRF, SRF, the research experience, probably, still they'll take you. But of course, you cannot publish a paper without a JRF, SRF or a research experience. So yeah, so that is definitely a big yes. Okay. Okay, sir. Thank you. Right. Yeah. So thank you so much, Megha, for your question. Now let's look at the next person. So Princey Verma, shall I allow you to talk? Okay. Princey, go ahead with your question. Princey, can you unmute your mic and ask, or you want to type? I guess Princey is not listening. Okay. So we'll wait for Princey. In the meanwhile, let's go to Revati. Revati, would you like to ask any question? Revati, are you with us? Hello. Hello. Yeah. Go ahead. Hello, Please ask sir. a question. सर Hi, good evening. आजकल का जो पीएम ने जो ओपन किया है रोजगार मेला टिल दिसंबर 2020 हाँ. उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन देंगे? कैसे भरना है उसको? अप्लाई कैसे करना है? हम बायोटेक्नोलॉजी पीपल एलिजिबल हो सकते हैं क्या? अच्छा, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैंने वो पढ़ा नहीं उसके बारे में क्या है। मैं ऐसा करता हूँ, अपनी टीम को मैं बोलता हूँ इसके बारे में कुछ डिटेल्स हमारे वेबसाइट पे डाल देंगे, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, क्योंकि इस वक्त मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है पीएम रोजगार मेला के बारे में कि उसमें बायोटेक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। हाँ, मेरी टीम को जरूर मालूम होगा, तो मैं एक काम करता हूँ, इस मीटिंग के बाद मैं उनसे बात करता हूँ और आई विल अलाउ कि भाई वो लोग आपको लिंक सेंड कर दें। ठीक है? रियली मच बिकॉज़ 10 लाख पीपल्स। हाँ, वो तो है, लेकिन एक और चीज है कि ये स्पेशलाइज्ड जॉब्स है या रेगुलर भर्तियां हो रही है, वो हमें पता नहीं है, तो हमें देखना पड़ेगा कि डीआरडीओ में हो रहा है कि नहीं, बार्क में हो रहा है कि नहीं, सीएसआर वाले कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस अब किनको किनको पीएम रोजगार मेला में लिया गया है वो हमें देखना पड़ेगा। तो स्पेसिफिक्स अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं ढूंढ करके आपको जरूर बताता हूँ। एक काम करते हैं, एक और चीज सभी के लिए, आई वांट टू टेल एवरीबॉडी, इफ यू आर अटेंडिंग दिस सेशन टिल द एंड, आई एम गोइंग टू गिव यू माय व्हाट्सएप नंबर। ठीक है? तो रेवती, यू कैन जस्ट मैसेज मी इन व्हाट्सएप और मैं वहां आपको लिंक भेज दूंगा। और पिछले हफ्ते जिसने भी अटेंड किया है उनको पता है, आई एम रिप्लाइंग टू देम कॉन्स्टेंटली। ठीक है? सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन रेवती। मतलब आंसर नहीं, हाँ, प्रॉमिस है, आई विल आंसर यू। तो that's all for you. Now let's move on to the next person. Okay, प्रिंसी, आपने क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो आई विल रिमूव योर एक्सेस नाउ। तो ओके, मेघा का आंसर मैंने रिप्लाई कर दिया है, रेवती का भी हो गया। चंदना, वुड यू लाइक टू आस्क ए क्वेश्चन? आप पूछ सकते हैं इस वक्त, गो अहेड। सो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए। Sir, now currently I am studying second year BSc Biotechnology. I want to study after biotechnology. I have to. I am preferring to take embryology for MSc. Okay. Yes, sir. So I am planning to take it in UK or US. So is it possible to take embryology if we study biotechnology? Absolutely. आप बिल्कुल ले सकते हो, यू कैन टेक डेफिनेटली, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके, जस्ट दैट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन सम एम्ब्रियोलॉजी रिलेटेड थिंग्स नाउ इटसेल्फ।
maybe an internship, maybe a hands-on training, something which is related to your future thing which of interest. So we call it as area of interest. So at the BSc level itself, if you decide what is your area of interest, and then you start working on some kind of hands-on or any lab you get associated with, learn, and then when you apply in for MSc there, okay, you have to remember this, a lot of people will apply. Okay, so you have to get selected, they should not get selected. So there can be an entrance exam, there can be some personal interview, there could be some Skype interview also. So if you know a bit about it, then they will take you, because unless you develop the area of interest and work on it and then apply, matlab ki if you don't do that, then it is just like wishing. You're just dreaming ki haan mujhe karna hai, but you know it won't happen, right? So Chandana, yes, you should do that. That's a very good observation. Go ahead and do it. Okay. Yeah. So any other question, Chandana? Sir, would we? Yeah. Sir, can we get any scholarships to go to other countries? Yes, a lot of scholarships are available. If you are following Biotecnika's YouTube channel as well as Biotecnika website, it is located there. Yes. You message me on WhatsApp, I'll reply you with the link. Okay. Okay. So that's a reward I'm giving to every subscriber who is joining me in the Ask Me Anything session. Another thing, today is the 3rd episode. I'll not do after 10th episode. So up to 10th episode I'll do. After that I'll not do. So everybody should attend till the end and you'll get my WhatsApp number. Okay. Okay. Thank you, Chandana, for your pleasure is entirely mine, and thank you for being a subscriber of Biotecnika. Chaliye, now next person is Ashutosh Bishi. So Ashutosh, I'll give you access to ask question. In the meanwhile, all those people who are asking question in chat, I will definitely answer your question once I have attended everybody, whoever is raising hand. Okay. So Ashutosh Bishi, I am giving you the access to ask. Go ahead. Ask a question. Ashutosh, can you hear me? Hello, sir. Yeah, hello. How are you? Sir, I am fine. Sir, I want to know about CSR because I मतलब मैंने follow किया है आपसे कभी और बहुत सारे videos भी देखे हैं और I want कि मतलब मैं अभी integrated courses के लिए apply किया हूँ वहाँ पर मतलब Central University के अंदर. अच्छा. और मुझे मतलब CSR के लिए थोड़ा प्रिपेयर करना है मतलब 5 साल तो मतलब इंटीग्रेटेड में बिताना होगा फिर 5 साल बाद क्या करना होगा उसके लिए तो मुझे अभी से मुझे CSR मतलब करना चाहिए या फिर कैसे करना चाहिए मुझे मुझे पता नहीं तो इसलिए आपसे जरूर मैं आपको हेल्प करूंगा 16 साल से मैं इस क्वेश्चन को आंसर दे रहा हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से तो आज मैं जरूर बताऊंगा सो आशुतोष जी मुझे बताइए कि व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन आपके क्वालिफिकेशन क्या है सर अभी मैं 12th कंप्लीट किया हूँ और मुझे 2 साल ड्रॉप लेना पड़ा नीट के लिए सो उसके बाद अच्छा इसलिए इंटरेस्ट हुआ कि नहीं मुझे अभी नीट के लिए मुझे रिसर्च फील्ड में जाना है तो इसलिए CSIR देखा ICMR तो उसके सारे वीडियोस देखे यूट्यूब के अंदर आपके वीडियो देखे और बहुत सारे के वीडियो देखे बट आपके थोड़ा अच्छा लगा और मतलब बहुत सारे टाइमिंग्स लगे ठीक है और रही बात ये है कि मुझे पहले से ही शुरुआत करनी चाहिए आपने बोले थे एक वीडियो के अंदर तो मैं कैसे करूं क्या करूं उसके लिए थोड़ा मतलब गाइडेंस चाहिए मुझे आई वांट ए गाइडेंस तो मुझे कैसा करना चाहिए तो सो दैट आई कैन क्वालिफाई CSIR आफ्टर 5 ईयर ओके तो आशुतोष जी आपके सवाल का जवाब मैं पहले ये दूंगा कि एडमिशन ले लीजिए आप जो इंटीग्रेटेड कोर्स है अब जब इंटीग्रेटेड कोर्स आपका चल रहा है ठीक है उसी बीच में आप CSIR नेट का सिलेबस निकालिए ठीक है और देखते जाइए कि कौन सा टॉपिक जो है ना ओवरलैप हो रहा है आपका कोर्स से क्योंकि 30 to 50% जो है ओवरलैप होता है हर कोर्स से CSIR नेट का सिलेबस तो जब वो टॉपिक पढ़ाया जाए तो ध्यान से पढ़िएगा तो पहला तो ये टिप हो गया ठीक है दूसरी चीज क्या हो गई कि अभी तो नहीं आप 2 साल बिताइए बिकॉज अभी आप +2 में हो 2 साल आप अपने बेसिक्स को फिक्स कीजिए जब सेकेंड ईयर में आप आ जाओगे अपने इंटीग्रेटेड MTech और MSc के तो सेकेंड ईयर से आप तैयारी शुरू कर सकते हो ठीक है तो अभी आप क्या है ना उसको दिमाग में रख लो कि ये सिलेबस है और इससे रिलेटेड जो भी बेसिक्स पढ़ाई जा रही है मुझे पढ़ना है ठीक है 2 साल आप बिताओ जब आपका बैचलर्स में जो फर्स्ट 2 इयर्स है MS मास्टर्स का इंटीग्रेटेड मास्टर्स का वो कंप्लीट हो जाए तब आप तैयारी शुरू करो ठीक है और अगला 3 साल आप लिखते जाओ ठीक है एग्जाम पहला बार लिखो एक्सपीरियंस के लिए देखो जैसे नीट लिखते हो तो एक बार आपको चांस मिलता है मतलब कि आपने दो बार ड्रॉप किया तो 2 ही बार लिखने मिला करेक्ट बट CSIR में आपको हर साल 2 बार मिलेगा चांस
हाँ, ठीक है। तो बेनिफिट क्या होती है कि 2 बार जब एग्जाम लिख रहे हो तो आपको एक्सपोजर मिल रहा है, तो अगला जो 3 साल होगा उसमें आप कितनी बार लिखोगे? 6 बार। ठीक है, 6 बार में से 1 बार भी क्वालिफाई हो गया, बस काम खत्म। ठीक है। अब ये सवाल उठता है कि आपने मान लो कि 3rd ईयर में ही क्वालिफाई कर लिया, लेकिन अभी तो एमएससी कंप्लीट नहीं हुआ, तो कैसे सीएसआर फेलोशिप एक्टिवेट करोगे? तो कोई बात नहीं, अब एक बार जो क्वालिफाई कर सकता है दोबारा भी कर सकता है, बल्कि दोबारा तो वो रैंक इंप्रूव कर लेता है। ठीक है, तो उसका टेंशन मत लो। एक्सपीरियंस के लिए अभी से ही मतलब 3rd ईयर से लिखना चालू कर दो। ठीक है, लिखते जाओ जब तक आप 4th ईयर 5th ईयर में आओगे, मतलब आपका इंटीग्रेटेड एमएससी खत्म होते होते सीएसआईआर तो निकल चुका होगा। ठीक है, लेकिन जेआरएफ टारगेट करना है, लेक्चरशिप टारगेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उसमें 2 कैटेगरी होती है। जेआरएफ मतलब आपको पैसे मिलेंगे गवर्नमेंट की तरफ से पीएचडी करने के लिए, 5 साल की पीएचडी का पैसा आपको मिलेगा, अराउंड 20 लाख रुपए मिलता है हर महीना, 35,000 कुछ है। बट हाँ, बाद में वो बढ़ेगा ही, जब तक आप पास करोगे तब तक तो शायद 60,000 हो जाए पता नहीं, बट हाँ इस वक्त 35,000 है। ठीक है, तो अब आप पीएचडी जो करोगे वो याद रखना, पीएचडी आपको टारगेट करना है आईआईएससी, आईआईटी या ऐसे इंस्टीट्यूट्स, सीएसआईआर लैब्स। उससे नीचे मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी सबसे करने की जरूरत नहीं। ठीक है, और आपके जो एमएससी के दौरान जो इंटीग्रेटेड एमएससी कर रहे हो ना, उसी बीच में आप वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेस, इंटर्नशिप जितना कर सकते हो करते जाना, पेपर पब्लिकेशन। मैंने जो स्टार्टिंग में भी बताया ना, जो भी सीवी इंप्रूवमेंट टिप्स, एक्चुअली वो करियर इंप्रूवमेंट टिप्स है। ठीक है, तो वो सारी चीजें जब करोगे ना तो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा। ठीक है सर, बट मैं चाहता हूँ कि मतलब अगर मैं सीएसआर के लिए प्रिपेयर करूँ, मतलब अभी से थोड़ा दिन के अंदर, तो क्या मतलब एंड तक वो मुझे अच्छी तरह से हो जाएगा ना? मतलब बिल्कुल होगा, बिल्कुल। देखिए, हाँ बोलिए। सर, आई वांट कि मेरे एक टीचर थे जो नीट के अंदर मुझे पढ़ाते थे, वो भी क्वालिफायर थे मतलब सीएसआर के अंदर, बट वो जेआरएफ नहीं क्लियर कर पाए, लेक्चरशिप क्लियर कर पाए। लेक्चरशिप किया, हाँ। देन ही सेड कि आप मतलब अगर जब सीएसआर के लिए प्रिपेयर करते हो तो आपको मतलब आपकी 11th और 12th की बेसिक्स भी आनी चाहिए, मतलब जो आनी चाहिए। हाँ, वो तो है, वो तो आपको है ही ऑलरेडी। हाँ, वो तो हो जाए, वो तो कर सकता हूँ, बट आई वांट कि मतलब वो धीरे धीरे से ही होगा ना? मतलब हम अगर अभी से शुरू करूंगा तो धीरे धीरे हाँ, तो देखिए 2-3 बुक मैं बताता हूँ, उसको आप पढ़ना चालू कर सकते हो। अगर आपको बायोकेमिस्ट्री पसंद है, सत्यनारायण शुरू कर सकते हो, लेनिंजर शुरू कर सकते हो। अगर आपको एनिमल फिजियोलॉजी पसंद है तो आप टोरा पढ़ना शुरू कर सकते हो। ये सारे जो है ना बेसिक बुक्स हैं। ठीक है, उसको पढ़ना शुरू करो और उसमें से सीखना शुरू करो। इसका वेट मत करो कि टीचर पढ़ाएगा, आप पहले ही पढ़ लो। ठीक है, और एक और चीज मैं आपको सीक्रेट बताऊं आशुतोष जी, आप अपने अभी जो नीट की तैयारी कर रहे थे ना, जितने बायोलॉजी टीचर से पढ़ा होगा ना, ऑलमोस्ट हर किसी ने सीएसआर ही लिखा होगा। और मेजॉरिटी जो बायोलॉजी वाले होते हैं सब हमारे सब्सक्राइबर ही होते हैं। ठीक है, तो आपके जो गुरुजी होंगे वो भी हमारे ही सब्सक्राइबर होंगे, हमारे से बहुत सारे हेल्प लिया होगा, तो डेफिनेटली आपको भी हेल्प मिलेगा। मैं तो मिलता रहूंगा। आप एक काम करो, ये जो बुक्स मैंने बोले, ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपको बुक्स की डिटेल्स भी भेज दूंगा। आप अभी से स्टार्ट कर दो। ठीक है, और धीरे धीरे पढ़ो। बट सर, व्हाट्सएप नंबर तो कैसे मिलेगा आपकी? मतलब नो, देखिए, जो भी इस सेशन को अंत तक अटेंड करेगा उसको मैं एक ईमेल भेजूंगा, और उसमें मेरा नंबर होगा। ठीक है, सबको नहीं भेजूंगा, जो लोग अटेंड कर रहे हैं उनको भेजूंगा। समझ गए? हाँ, तो जूम में पता चल जाता है ना किसने अटेंड किया। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग योर क्वेश्चन आशुतोष जी, और बहुत अच्छा लगा कि +2 के टाइम से ही आप प्लानिंग कर रहे हो। बहुत ही मतलब उम्दा प्लान है, आप बहुत आगे जाओगे, फ्यूचर में आप बहुत बड़े साइंटिस्ट बनोगे डेफिनेटली। तो चलिए, आशुतोष जी की बात हो गई। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट पर्सन, निकिता आर्या। आपने कुछ क्वेश्चन पूछा है, तो आई विल अलाउ यू टू टॉक। निकिता, कैन यू प्लीज आस्क योर क्वेश्चन नाउ? निकिता, आप मुझे सुन सकते हैं? कैन यू प्लीज आस्क योर क्वेश्चन? I think Nikita cannot hear me. I'll pass on the opportunity to the next person, Juhi. Can you ask your question now, Juhi? If you can unmute your mic. Hello, sir. Yeah, hi. Hi, Am I Juhi. audible? Please tell me. Yes, you are audible. I'm a postgraduate student from MSc Life Sciences. हाँ, सर, मुझे ये पूछना था कि अगर क्या मैं मतलब कि ऐसे मतलब सीवी इम्प्रूवमेंट के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जैसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज वगैरह मैं अप्लाई कर सकती हूँ, जैसे पाइथन एंड ऑल?
हाँ, तो आप एमएससी कर रहे हो ना, पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया कि कर रहे हो? सर कर रहे हैं। कर रहे हो, चलो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और ये सभी लोगों के लिए बेनिफिशियल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू जूही फॉर आस्किंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपको एक ऐसे बताता हूँ कि ये जो मैं वेबिनार, ये जो आस्क मी एनीथिंग सेशन हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? कंप्यूटर से हो रहा है, करेक्ट? कैमरा है ऑब्वियसली, बट कंप्यूटर है, कैमरा के अंदर भी कंप्यूटर है एक्चुअली। तो अब ऐसे सोचो कि दो फील्ड है, अगर उसको कंबाइन कर दे तो वो ज्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि एक फील्ड जो है ना कंप्यूटर साइंस, वो बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, और बायोटेक जो है ना, बायो साइंस, ये भी इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब ऐसे सोच लो कि जब जो आपकी जो कोविड की जो वैक्सीन बनी, मॉडर्ना ने जो बनाया, ठीक है, एमआरएनए वैक्सीन, वो भी उसने बायोइन्फॉर्मेटिक्स यूज किया, कंप्यूटर सिमुलेशन से बनाया। ठीक है, अभी एक और चीज मैं बताता हूँ, आज ही एक न्यूज में पढ़ रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा सर्च किया गया ड्रग मॉलिक्यूल अभी क्लिनिकल रिसर्च में जा रहा है, ह्यूमन ट्रायल में जा रहा है। समझ गए? तो फ्यूचर क्या होगा ना कि कंप्यूटर और बायोलॉजी अलग अलग नहीं होगी, एक ही होगी। ठीक है, और उसको हम या तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स बोलेंगे, क्वांटम बायोलॉजी बोलेंगे, मतलब सब कुछ एक हो जाएगा, इट विल बी यूनिफाइड। तो मतलब ये है कि जूही एंड एवरीबडी, अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? मैं दो रीजन बताता हूं। पहला रीजन है कि अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो तो आप स्क्रोडिंगर जैसी कंपनीज जो कि बायोलॉजी के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है, आप उसमें काम कर सकते हो। ठीक है, मतलब आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाओगे बायोलॉजी सॉफ्टवेयर के लिए। या अगर आप सीखते हो तो प्रोग्रामिंग कोडिंग फॉर बायोलॉजिस्ट जो हमारा कैंपेन है वो सीखते हो, तो क्या होगा कि जब आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स में घुसोगे या कोई भी ऐसी फील्ड में, तो ये जो है ऐसे समझ लो कि आप खुद स्लो वॉक करते हो, लेकिन अगर आप उसैन बोल्ट के कंधे पे बैठे हो तो डेफिनेटली आप जल्दी फास्ट भागोगे, राइट? वैसे कंप्यूटर साइंस के कंधे पे बैठ के आप बायोटेक्नोलॉजी को फास्ट लेके जा सकते हो, इसलिए कोडिंग सीखनी जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी। ठीक है, तो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन जूही, और बहुत ही उम्दा ख्याल है। हाँ बोलिए। थैंक यू सर। सर एक्चुअली बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है, जैसे कि जावा है और HTML है, देन पाइथन, फिर कोई आर लैंग्वेज भी होती है जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में होती है। तो कोई प्रेफरेंस देना चाहिए कि किस लैंग्वेज को? देखिए, ऐसा कुछ प्रेफरेंस नहीं है, लेकिन आप एक लैंग्वेज लीजिए, उसको पहले सीखिए, फिर नेक्स्ट पे मूव कीजिए। ठीक है, अगर आप मुझे पूछोगे तो पाइथन बेस्ट है, क्योंकि इजी है। पाइथन मैंने भी सीखा है, बहुत इजी है। ठीक है, और धीरे धीरे आप बढ़िए आगे, पाइथन सीख लो, फिर आर सीखो। ठीक है, पाइथन क्या है ना, एक नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज जैसा है। ठीक है, कि प्रिंट कैट मतलब कैट आ जाता है, तो वो बहुत ही आसान है। तो पाइथन से आप शुरू कर सकते हो, क्योंकि आसान है, क्योंकि एज ए बायोलॉजिस्ट आप पहले आसान से शुरू करना चाहिए, तो वो आप कर सकते हो। बट हाँ, ऐसी कोई सीक्वेंस नहीं है, आप कोई भी चूज कर सकते हो, आपको जो पसंद है आप कर सकते हो, बट मेरा प्रेफरेंस पाइथन है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम और धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आवर सेशन टुडे। तो ये थी हमारे साथ जूही। अभी निकिता, आपने क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो आई विल रिमूव योर परमिशन टू टॉक। ओके, थैंक यू निकिता। एंड नाउ आई थिंक एवरीबडी हु हैज रेज्ड हैंड हैज आस्क्ड क्वेश्चन। तो अब मैं पहुंचूंगा उन क्वेश्चंस पर। आई विल चेक द क्वेश्चंस whoever has asked in the Q&A session. So I can see Q&A segment में 27 questions are there. Okay, Nikita, if your mic is not working, you can just text it, chat में लिख दो, मैं आंसर कर दूंगा। I will answer that. Okay, so first question जो था anonymous attendee ने पूछा था, प्लीज नाम लिखिए, अच्छा लगता है। So I'm a BTech biotech graduate and mailing professors in USA for MSc PhD in biological sciences, plant biology, and most positions are for PhD. But still confused, is it worth it? I don't want to enter into academia and want to enter into industry. So anonymous attendee and all my attendees here today, I want to tell you this. If you want to grow into the research field, United States of America is the Mecca. मतलब वो अयोध्या है, बायोटेक का अयोध्या है। इट्स द मेक्का ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद आता है यूरोप, उसके बाद आता है चाइना, 4th नंबर पे इंडिया आता है। ठीक है, now if you want to get in there, is it worth it? Yes, it is definitely worth it, but you will not get stuck in academia, but you have to watch one of the video जो मैंने बनाया था PhD पर बनाया था, PhD in USA। अगर आप मुझे WhatsApp में मैसेज करोगे, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। ठीक है, यहाँ पर तो लाइव सेशन में लिंक ढूंढने जाऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा बाकी लोग का, सो आई विल सेंड यू दैट। ठीक है, सो एनोनिमस अटेंडी, आप मुझे WhatsApp कीजिएगा,
I will definitely send you that link. आप वो देखिए. You'll never be stuck in academia. You can definitely get into industry, और industry की starting salary वहाँ पर 1,20,000 US dollars per month है. So that's a big amount. You can definitely get there. Okay, so that have been answered. Next, Srividya. Okay, next question है, can I change career to cancer biology from plant science after PhD? Difficult तो है, but कर सकते हो. But कैसे करोगे इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करनी पड़ेगी. So it will be difficult. आप एक काम कीजिए, you WhatsApp me, I will reply. Because यहाँ पर it will take a lot of time for others. बाकी लोग भी आंसर पूछ रहे हैं, और I want to especially pay attention to your question, क्योंकि ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है कि कैंसर बायोलॉजी में जाना चाहते हो आफ्टर प्लांट. तो एक लाइन में if I have to answer, you have to look at anti-cancer plant products in one line. But yeah, there is a big opportunity there. कर सकते हैं definitely. So I hope that answers your question. So इसको मैं mark कर देता हूँ. Answered live. Jatin Sharma has a question. I secured 99.38 percentile this time from general category. According to this percentile, as per my prediction, my rank may not be under 100. Okay, आप CSIR की बात कर रहे हो या GATE की? May also not be able to cross the cutoff for top institute in life sciences like IIC, IIT Bombay. So my question is, can you please tell me other good institutions according to my percentile and future rank? So I think this is for CSIR 99.38. Okay. And one more question is that we should check these points for PhD guide, professor qualification, research lab funding. जतिन, आपने बहुत ही अच्छी क्वेश्चन पूछी है. ठीक है, लेट मी टेल यू दिस, ये बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है और इस पर तो एक्चुअली एक वीडियो बननी चाहिए. ठीक है, सो मैं आपके क्वेश्चन को सेव तो कर रहा हूँ इस वक्त, बट डेफिनेटली आई विल आंसर यू राइट नाउ इन ब्रीफ. लेटर ऑन आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपसे डायरेक्ट वॉइस मैसेज भेज दूंगा आपको जो भी रिप्लाई है. तो चलिए मैं एक सेव कर लेता हूँ क्विकली स्टिकी नोट पे. ठीक है, होल्ड ऑन गाइस व्हाइल आई सेव दिस. ठीक है, मैं सीरियसली आई एम रियली इंटरेस्टेड इन आंसरिंग योर क्वेश्चन जतिन, बट ऐसा है कि इस वक्त बहुत ही सारे क्वेश्चंस है तो मैं इसको बाद में लेता हूँ. ठीक है, वन आंसर क्वेश्चन बोल रहा हूँ. यस, पॉसिबल है. बहुत सारे अदर इंस्टीट्यूशंस आर गुड इंस्टीट्यूशंस आर देयर फॉर योर पीएचडी विद दैट परसेंटाइल. ऑल यू नीड टू टॉक टू मी लेटर. ओके जतिन, ऑलराइट. सो इज देयर एनी स्कोप फॉर एल्गल बायोटेक्नोलॉजी फील्ड? बिल्कुल है. That's definitely there. So why it is definitely there? Because if you look at this, algae में बहुत scope है. algae से बहुत सारे products बनते हैं, already बनते हैं, जो कि हम daily life में use करते हैं. We even don't know about it, right? So algal biotechnology can be a future growing field. Right now the research which is going on is in different companies. So basically you have to really go and research which companies are building products from algae and they're applying biotechnology there. So you can do a PhD in algae biotechnology and then move on to these companies. So it's applied science. Definitely there is scope there. So I hope that answers your question. Okay, the next question, I'm interested to pursue postgraduate diploma in bioinformatics, but I need that my institution I'm interested in training, not some kind of university. I think I have already answered that question, so isko main mark kar deta hu. Done. Nikita Arya, so you have a question. I've done BSc Biomedical Sciences. Currently I am first semester MSc Biotechnology. I want to know what the wet lab and dry lab skills a biotechnologist should learn. तो इसके लिए निकिता we have a video actually. ठीक है, सो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए. आई विल सेंड यू द लिंक ऑफ द यूट्यूब वीडियो. आप वो देख लीजिए. उसके बाद जो क्वेश्चन होगा आप मुझे भेजिएगा. आई विल रिप्लाई बाय वॉइस मैसेज टू यू इन व्हाट्सएप, क्योंकि वो बहुत ही फास्ट होता है, टाइप करना मुश्किल है मेरे लिए. ठीक है, एंड फ्रॉम वेयर वी कैन लर्न एंड प्रैक्टिस अलॉन्ग विद आवर रेगुलर क्लास शेड्यूल. या देखिए, व्हेन यू आर इन अ रेगुलर क्लास तो वहां पर यूनिवर्सिटी आपको छोड़ेगी नहीं. दिस इज समथिंग फॉर एवरीबडी. हुएवर इज स्टडीइंग बायोटेक, एमएससी, बीएससी कर रहे हो, योर यूनिवर्सिटी विल नॉट लीव यू. वो आपको फंसा कर रखेंगे. ये प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, वो यूनिवर्सिटी एग्जाम, ये सेमेस्टर एग्जाम, वो असाइनमेंट, ये पागल कर देंगे. ठीक है, बट एट द सेम टाइम अब आप कहीं जा नहीं सकते हो.
ठीक है, लर्न करने के लिए. So what you can do is Biotecnika has a lot of courses which are virtual. You can sit at home, sit in your extra hours and learn, sit in your weekends and learn. So that's what we do. In fact, coding for biologists ले लो, certification courses ले लो, workshops ले लो, internships ले लो. We have lot of such things. Okay, so while you are doing your masters, you can always do these also. Okay, how can I get experience about research environment, like how it is done, etc.? For that, join some lab as a temporary JRF, SRF. You learn a lot. Okay. I want to be a biotechnology researcher. So I hope that answers your question, Nikita. Next question जो हमारे पास है जसनूर सिंह का है. After BTech Biotech, skipping MSc and joining PhD in USA in biological sciences. Okay. BTech Biotech के बाद you want to do PhD in biological sciences. Yes, you can do that. There is no problem with that. Okay. So you have to gain some research experience which is relevant to the topic which you want to do PhD. Have a strong statement of purpose. Get some teaching experience if you can. And in the meanwhile, write your GRE or TOEFL or IELTS, whatever is required by that university, and then apply. You should get in there easily. और एक और चीज, एक हिंट दे रहा हूँ सबको, ध्यान से सुन लो. I'm going to give you a hint. बहुत बड़ा हिंट है. इंडिया में ना बायोटेक वालों को अभी धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है. बहुत जल्दी मैं सुन रहा हूँ DRDO इज गोइंग टू स्टार्ट अ बायोटेक आर्म. ठीक है, तो वहां पर तो स्कोप होगी, बट यूएस में ऑलरेडी वो है. तो यूएस वाले दे आर जस्ट वेलकमिंग ऑल ऑफ यू. ठीक है, दे आर हैप्पीली वेलकमिंग ऑल ऑफ यू फॉर योर PhD एंड पोस्ट डॉक देयर. बहुत ईजी हो गया है अभी कोविड पैंडेमिक के बाद वहां जाना. इन द मीनवाइल इंडिया में याद रखना, इंडिया में बिकॉज बायो वॉरफेयर जो हुआ है ये कोविड की वजह से अब डर है, क्योंकि बॉस्टन यूनिवर्सिटी के किसी रिसर्चर ने ही कोविड बना लिया, राइट. सो अभी ये डर है, सारी कंपनीज को डर है कि बायो वॉरफेयर अभी स्टार्ट हो सकता है. सो व्हाट दे आर गोइंग इज एवरी कंट्री इज गोइंग टू बिल्ड देयर ओन बायो वॉरफेयर डिपार्टमेंट. और वहां पर किसको लेंगे जॉब में? केमिस्ट्री वालों को भी नहीं ले सकते, सिर्फ बायो साइंसेज वालों को लेंगे. सो आपका स्कोप 100 टाइम्स बढ़ने वाला है. ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको अंदर की दे रहा हूँ. एनी डे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल अनाउंस, दे मे नॉट अनाउंस ऑल्सो, क्योंकि ये बहुत ही सीक्रेट चीज है. ओके, बट ये होगा. ठीक है, 4 मिनट बचे हैं और सो मेनी क्वेश्चंस. ओ माय गॉड. चलो मैं जल्दी जल्दी आंसर करता हूँ. ओके, एनोनिमस अटेंडी, आई हैव करियर गैप्स ड्यू टू मेंटल इश्यूज, हाउ टू ब्रिज देम. एनोनिमस अटेंडी व्हाट्सएप कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आई विल रिप्लाई टू यू. ओके, प्रॉमिस है, आई विल रिप्लाई एवरीबडी हु इज सेंडिंग मी अ व्हाट्सएप मैसेज. ईमेल भी कर सकते हो, बट ईमेल में थोड़ा टाइम लगता है, इतने सारे ईमेल आते हैं मुझे. ओ माय गॉड. सो आप एक काम करो, मुझे व्हाट्सएप करो, मैं व्हाट्सएप में आपको वॉइस मैसेज भेज दूंगा. ठीक है. ओके, सो दैट आंसर्स योर क्वेश्चन गाइस. डन, आंसर लाइव डन. ओके, नेक्स्ट दीपांजलि झा के पास कुछ क्वेश्चन है एंड यू वांट टू आस्क. Dipanjali, I'm giving you access to ask live. Can you ask your question now? You can unmute your mic and you can ask your question. Dipanjali. Hello, good evening, sir. Good evening, नमस्कार. बोलिए. सर, मेरा नाम दीपांजलि है और मैंने मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट किया है 2022 में. मैंने गेट भी क्वालिफाई किया था, तो उसके थ्रू मैंने बरहमपुर यूनिवर्सिटी से बायोटेक्नोलॉजी से मास्टर्स कंप्लीट किया है. पर सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड का टाइम चल रहा था. कोविड के टाइम की वजह से हमने बहुत ज्यादा समर ट्रेनिंग्स आती हैं, ये सारी चीजें हम नहीं कर पाए हैं. और साथ ही क्योंकि टाइम का बहुत कम था और कॉलेज को एक सेशन में अपना सेशन कंप्लीट करना था एक पर्टिकुलर टाइम में, तो हम कहीं और जाकर हमने अपना डिसर्टेशन भी नहीं किया है. अच्छा. सर, ऐसे में हमारी CV बहुत वीक नजर आती है. जैसे कि ना तो हमारे पास इस वक्त कोई मेरे पास ना तो इस वक्त कोई पब्लिकेशन है और ना ही मैंने कोई समर ट्रेनिंग की है. ऐसे में मैं ये प्लान कर रही हूँ कि मुझे इंडस्ट्री की तरफ जाना है. और मैं जैसे अभी मेरे पास कुछ टाइम है, जैसे अभी मेरा कंप्लीट हो गया है मास्टर्स, तो मैं ये चाह रही हूँ कि अगर मैं कोई ट्रेनिंग कर पाऊँ तो. लेकिन अभी जितनी भी समर इंटर्नशिप के लिए नोटिफिकेशन आ रही है, मैं उसमें देख रही हूँ कि उसमें वो सिर्फ मास्टर स्टूडेंट्स को अलाउ कर रहे हैं. और सर, क्या ये पॉसिबल है कि मैं किसी इंडस्ट्री में, जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत जो बड़ी कंपनियां हैं, मैं उनमें इंटर्नशिप कर पाऊँ और उनमें इंटर्नशिप करने के बाद मेरा एक वो पाथ क्लियर हो कि किस तरीके से मैं इंडस्ट्री में इंटर कर सकती हूँ. क्योंकि जैसे जो बीटेक वाले स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो काफी अच्छी होती है. लेकिन जो बायोटेक की स्टार्टिंग सैलरी जो मैंने देखा है कि जो बायोटेक की स्टार्टिंग सैलरी है वो ऐसी सैलरीज है जिसमें हम
सरवाइव मुश्किल से कर पाएंगे। तो सर मुझे इसके लिए मैं बहुत क्लियर नहीं हूँ कि किस तरीके से इंडस्ट्री में एंटर किया जाए, और इंडस्ट्री में एंटर करने के बाद क्या स्कोप है, हमारे ग्रोथ की क्या स्कोप है। तो सर मैं इस बारे में जानना चाहती हूँ। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन पूछा है दीपांजलि। लास्ट 1 मिनट है, जल्दी से मैं रिप्लाई करूंगा, ठीक है। पहली चीज, देखिए, जो बच्चा कोविड में एमएससी कर रहा था वो कम टैलेंटेड नहीं है, ठीक है। तो अपने आप को कभी कम मत समझना कि कोविड के टाइम में मैंने किया, एक्सपोजर नहीं मिला तो मैं कम हूँ बाकियों से, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आपको क्या है ना, कंटिजेंसी प्लान, मतलब प्लान ए तो चला नहीं है, प्लान बी पे आना है, ठीक है। प्लान बी ये है कि जो जो भी इंटर्नशिप आ रही है वो और जो भी रिजर्वेशन आ रही है वो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। तो वहां पे आपको एंट्री नहीं मिल रही है। आपको क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको एक्सपोजर चाहिए। अब वो कोई जरूरी नहीं कि इंटर्नशिप के थ्रू ही मिले या डिजर्टेशन के थ्रू मिले, आप कहीं पर भी एज ए टेम्पररी कॉन्ट्रैक्चुअल जेआरएफ भी अप्लाई कर सकते हो। मान लीजिए कि आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो है क्रिस्पर सपोज, या बायोइन्फॉर्मेटिक्स, या जो भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो आप चेक कीजिए, बायोटेक्निका पे जाके चेक कीजिए कि भाई कहाँ पर इससे रिलेटेड रिसर्च हो रहा है, मैं वहां अप्लाई करूं, उसमें एब्जॉर्व हो जाऊं, ठीक है। और वहां पर आप एक्सपोजर लीजिए। जैसे बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको इंडस्ट्री में जाना है, जाने के लिए मतलब इंडस्ट्री में ही इंटर्नशिप करना है, आप यहाँ से भी कर सकते हो। और ये जो रिलेवेंट एक्सपीरियंस आ गया, इसको इस्तेमाल कर सकते हो आप फ्यूचर में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और उस समय कोई नहीं पूछेगा कि आपने इंटर्नशिप क्यों नहीं किया इस जगह से। लोग ये देखते हैं कि आपको एक्सपीरियंस है कि नहीं। एज ए फ्रेशर जो होता है ना, एक्सपीरियंस बहुत जरूरी होता है। सब बच्चे पूछते हैं कि हाउ टू रिमूव माई टैग ऑफ फ्रेशर, मैं अपना फ्रेशर का टैग कैसे रिमूव करूं, ऐसे करो, ठीक है। तो ये जो टेम्पररी जो कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस आती है, ये एक वरदान है इंडिया में, आप सबके लिए एक वरदान है। और बायो साइंसेस में तो कितनी सारी आती है, तो आप वहां कर लो। इन द मीनवाइल जो है ना, अगर आपको रियली इंटर्नशिप करना है तो वर्चुअल इंटर्नशिप्स भी होती है बहुत जगह पे, वर्चुअल कोर्सेज होती है, वो कर सकते हो। और देखते रहो, बायोटेक्निका पर देखते रहो, कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ रेलेवेंट मिलेगा, वहां अप्लाई करो। और कैसे करोगे, सिर्फ ईमेल भेजने से नहीं होगा, उस आदमी को लिंक्डइन पे ढूंढो, ठीक है। उसको मैसेज करो कि सर मैंने आपका ये ओपनिंग देखा बायोटेक्निका पर, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं जेन्युइनली इंटरेस्टेड हूँ, मेरे पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी है, अगर आप मुझे 2 मिनट दें मैं आपके साथ चैट करके इसके बारे में बात करना चाहती हूँ। वो रिप्लाई करेगा, ठीक है। और नहीं भी करता, आप एटलीस्ट आपने ट्राई तो किया। इस तरीके से आप 10 लोग को ट्राई करोगे, कोई ना कोई एक तो रिप्लाई करेगा, ठीक है। सारे जो आपके प्रोजेक्ट गाइड्स होंगे या जो भी एचआरस हैं, सभी लोग लिंक्डइन पर हैं। आज के डेट में 3.5 लाख बायोटेक्नोलॉजिस्ट लिंक्डइन पे है, ठीक है। आप सबसे टच कर सकते हो। बायोटेक्निका पे तो 7.5 लाख लोग हैं, ठीक है, सिर्फ बायो साइंसेस के। तो आप सबसे टच में रह सकते हो, डेफिनेटली आपको हेल्प आएगा, ठीक है। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन दीपांजलि। 3 मिनट ले लिया मैंने एक क्वेश्चन को आंसर करने में, कोई बात नहीं। सो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछिए, ठीक है। सो आई विल रिमूव योर परमिशन टू टॉक नाउ। और भी बहुत सारे क्वेश्चन रेज्ड हैंड्स है और टाइम बहुत कम है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई विल क्विकली लुक एट सम टेक्स्ट चैट्स, और बाकी क्वेश्चंस मैं सेव कर लूंगा ये चैट, और बाद में मैं आपको व्हाट्सएप में भेजता हूँ। व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कीजिएगा, ठीक है। So I had not attended first 2 sessions, Nirupama Parida. I had a question from a long time, in which field there is more scope, MSc Biotechnology, Microbiology और Biochemistry. स्कोप के बारे में अगर तीनों में पूछिए, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक में सब में सेम ही है, ऐसा नहीं है कुछ डिफरेंट है। मेरे ख्याल में बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी में ज्यादा है अकॉर्डिंग टू मी, बट मैं गलत हो सकता हूँ, आई मे बी रॉन्ग। तो अगर ओवरऑल देखोगे तीनों में बराबर ही मिलता है। बायोटेक में क्या है कि वो बंदा माइक्रोबायोलॉजी में जा सकता है, ही कैन गो इनटू माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, ही कैन गो एनीवेयर, राइट, बिकॉज इट्स अ ब्रॉड फील्ड। माइक्रोबायोलॉजी इज अ स्पेसिफिक फील्ड जो आप मूव नहीं कर सकते हो। बट हाँ, मैंने ये पर्सनल बता रहा हूँ कि मैंने देखा परसों एक पीएचडी फिजिक्स कर रही है, सो द गर्ल इज डूइंग पीएचडी फिजिक्स इन कनाडा, बट हर क्वालिफिकेशन इज एमएससी बायोकेमिस्ट्री। I asked, how did you do it? Like, she got accepted because she was interested. So, आजकल की दुनिया सब उल्टा हो चुका है, you know. After COVID, they can take you anywhere. So, yeah, that's possible. Okay, so that will not be a deterrent for you. Okay, so do review papers help too? Yes, Pratyusha, it helps. How to apply for PhD in universities in USA? I have a video for that. Please look at that. The next question is from anonymous attendee. Which branch of biology has better scope in US for masters? Bioinformatics has got a lot of scope. Princey, I gave you a chance to ask a question already. Okay, so you scored 99.6 percentile.
I need to know further planning. So Princey, get in touch with me on WhatsApp after this. हम सबसे टच में रहेंगे, ठीक है? पूरे हफ्ते टच में रहेंगे, जो क्वेश्चन है पूछना, ठीक है? Dhanya Raj, I have completed my MSc in botany. Now I am searching for a job. Could you please suggest any job-oriented course? Dhanya, there is a lot of courses on Biotecnika you can pursue. Otherwise, you can also look for various internships which we are conducting, or other companies are conducting. We keep posting on Biotecnika as well. Okay, so okay, Princey, CSIR था, ठीक है? So Princey, I answered your question. आप मुझे WhatsApp कीजिए. I'm going to reply to you. Okay, currently I'm working in Wipro, Swarna Shri Basaj, as a medical device tracking analyst. Oh wow, and QC analyst. It's been 1.8 years. I'm a postgraduate in physiology. Is it possible to have a job role of a research assistant in Biocon or Syngene in these reputed organizations? So Swarna Shri, you are already on a good path. I don't see you should be changing it, but if you want to change, yes, it is possible. बायोकॉन और सिंजीन में मैं एक ट्रेंड देख रहा हूँ कि इनके एचआर्स जो होते हैं, दे आर पोस्टिंग देयर जॉब पोस्ट एज ए नॉर्मल लिंक्डइन पोस्ट. सो आप क्या कीजिए, यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद बायोटेक्निका, आप वहाँ पोस्टिंग देख सकते हो. अदरवाइज लिंक्डइन पे यू कैन सी द जॉब्स, ठीक है, एंड यू कैन अप्लाई. And they're not even posting a job, they're just posting, hey guys, we are looking for a MSc specialist in this thing, anybody interested, QC analyst, and they're putting their email ID. I don't know आजकल क्या situation है, but yeah, आप ले सकते हो, you can do that. Anonymous attendee, I really get anxious about my preparation, my exams. I panic a lot, and there's a lot of self-doubt and self-criticism. Anonymous attendee, you are the right place. अगर आपको ऐसा हो रहा है, remember this: self-criticism or fear, ये सब paper tiger है, कागजी शेर है. These are not reality. Okay, your just mind is going in the wrong direction. जैसे आज का I think एक thought मैंने लिखा, and that thought is बाद में आएगा आपको, morning में आएगा. So ये thought है कि comparison is a very strong tool, but you have to remember what parameters you use. If you compare with a person who is going fast, you'll always feel you're slow. But if you compare with somebody who is going slow, you'll feel you're faster, right? So comparison mat kijiye, okay? Instead, you focus on what you have to do. So create an action plan. Okay, Ravali, आपके पास तो मेरा WhatsApp number है, तो यहाँ क्यों पूछ रहे हो आप? WhatsApp पे आओ Ravali, right? I think we already spoke on WhatsApp. Okay, so Princey, okay, I've answered. Vijay, qualified scientist C at IUAC New Delhi and schedule the interview on 23rd November. Please guide how to proceed. इतने कम समय में I can't answer विजय, आप मुझे WhatsApp पे मिलिए या फिर अगले हफ्ते, ठीक है? So yeah, Nikita, I think I already answered your question, ठीक है? You please send across in WhatsApp again, I will reply, ठीक है? तो मेरा ये point of view है कि हर बच्चा, every student who is watching this video recorded as well as live, special है, ठीक है? Each person among you is special. I'll say, I'm going to give you a date, ठीक है? 2nd November 2029 को, 7 years from today, each person will be placed as a big shot in the industry. ये मुझे पता है, क्योंकि मेरे जो 2006 के 2012 के जो बच्चे हैं, वो आज big shot हैं, ठीक है? So you can definitely get there, but consistently अगले 7 साल मेहनत करनी है, ठीक है? Don't look at the dark side, because बहुत सारे लोग हैं आके इंटरनेट पे, यूट्यूब पे बोलते हैं अरे सब डार्क है, सब डार्क है. क्यों डार्क है? क्योंकि उनको खुद नहीं मिला, ठीक है? आप कर सकते हो. मेरे इंडस्ट्री में जितने दोस्त हैं, लिंक्डइन पे जितने कनेक्शंस हैं, मैं सब खोल के आपके सामने रख दूंगा कि आप ले लो, ठीक है? Please get in touch with everybody who is there in my network and take your job, take your scientist position, take your जो भी आपको बनना है. But एक भी बच्चा, whoever is here, should not come back to me in 2029 saying कि सर कोई फायदा नहीं हुआ. I don't want that. I want everybody out there to know this, that in 2029 you are going to be a renowned scientist, renowned researcher, a well-placed, high-earning person in the community. ठीक है? लेकिन उसकी शुरुआत आज होगी, यहाँ से होगी, when each of us will support each other. तो I will keep coming every Wednesday, आपसे मिलता रहूंगा. different formats होगी, कभी वीडियो, कभी लाइव, कभी ask me anything, कभी टेलीग्राम चैनल, ठीक है? और 3 लोग को मैं आंसर नहीं कर पाया, किरण, नैन्सी एंड नेहा. तो ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप मैसेज, आई विल रिप्लाई. अभी I will drop an email to all of you with a WhatsApp number. अगर आपको मेरा WhatsApp number नहीं मिलता है, I am going to give you my email ID also. ठीक है? I am typing it here, Shekhar@biotecnika.org.
जिसमें बायोटेक्निका में H नहीं है, shekhar@biotecnika.org। ठीक है, आप मुझे ईमेल कीजिए अगर व्हाट्सएप नंबर नहीं मिलता है तो आई विल डेफिनेटली आंसर दैट। ठीक है, या तो मैं वीडियो के रूप में रिप्लाई करूंगा या ऑडियो के रूप में रिप्लाई करूंगा। सो किरण, नैंसी एंड नेहा, आपका क्वेश्चन रह गया नेक्स्ट टाइम, नहीं तो आप मुझे ड्रॉप कीजिए ईमेल। सो दिस इज इट गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड एपिसोड ऑफ Ask Me Anything session. Today, we discussed about how to improve your CV. We discussed about those tips, and then I took up questions from each one of you. Thank you so much for attending today's session. It was wonderful talking to all of you. फिर मिलेंगे अगले हफ्ते वेडनेसडे को। Each person is special, so they deserve a special attention. You deserve a special attention, और वो आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ बायोटेक्निका पर। Thank you so much. Take care. Good night. Bye-bye. Thank you.